આપણે અત્યંત શ્રદ્ધાથી પ્રેમ અને હૃદયપૂર્વક ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ છીએ ત્યારે આપણી પ્રાર્થનાનો જવાબ ચોક્કસ મળે છે। પ્રાર્થનાથી ઉત્પન્ન થતા સ્પંદનોની અસરથી આપણને દૈવી શક્તિઓની સહાયતા પ્રાપ્ત થાય છે। सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे। रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामानासि परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्महं। रामतपोवनादिगमनं मत्वा मृगं काञ्चनं वैदेहीहरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं वालिनिग्रहणं समुद्रतरणं लङ्कापुरी दाहनं पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्विरामायणम्। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगृहे वर्धनं मायापूतनजीवितापहरणं गोवर्धनोद्धारणं। करती है तोते ताली बजाते हैं ये सब मेरे साथी है मिलकर शोर मचाते हैं। हैप्पी बर्थडे डियर हियन भाई।
લોકોને પ્રભુ વિશે ખોટું કહે છે. હે જગદીશ, તારા લીધે આખું જગત ઊભું છે. તું સૌનો સર્જનહાર છે, તું સૌનો પાલનહાર છે. તું સવારે બધાને ઉઠાડે છે અને ઊંઘ પણ તું જ આપે છે. હે પ્રભુ, હું તારું નામ ઘરે ઘરે લઈ જઈશ. તારો ઘરે ઘરે જય જયકાર કરીશ. કોઈનાથી ડરીશ નહીં, દુઃખથી ગભરાઈશ નહીં. મારા પિતાને સહજ બુદ્ધિ આપ. તારે નરસિંહ થઈને મારી મદદ કરવી પડશે. વિનાશાય ચ દુષ્કૃતમ ધર્મસ્ય સ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે. હું એક સુંદર ફૂલ છું. હું લાલ સફેદ પીળા રંગમાં જોવા મળું છું. મારામાં 5થી વધારે પાંદડીઓ હોય છે. વાળની સુંદરતા વધારવા માટે મારો ઉપયોગ થાય છે. શરબત બનાવવા માટે મારો ઉપયોગ થાય છે. જાણે હૃદય ખુલે ને લાગણીઓ પામે. ક્યાં કોઈ ગણતરી કે ક્યાં કોઈ મંત્રણા. મિત્ર મળે પછી હોય સંભાળના. દિલની વાત અને દિલથી વાત. દિલની બસ ન્યાલ હોય, જીવન બસ ન્યાલ હોય. આવું જ મિત્રોના નિખાલસ અને નિસ્વાર્થ પ્રેમ અને દોસ્તીનું ગીત રજૂ કરે છે અમારા કેજીના નાનકડા ભૂલકાઓ.
ભરપૂર હોય છે. બીટનો ઉપયોગ સલાડ બનાવવા થાય છે. બીટ ખાવાથી હાડકાં મજબૂત બને છે. બીટ ખાવાથી લોહીનું નવું થાય છે. બીટ ખાવાથી વજન ઓછું થાય છે. શ્રી કૃષ્ણ મારા સારથી ધર્મના કામ માટે પ્રભુએ મને સાધન બનાવ્યો. હે અધર્મી દુર્યોધન, હવે તારો વધ થશે. હે કર્ણ, તે દ્રૌપદીનું અપમાન કર્યું છે. મહાભારતના ધર્મ યુદ્ધમાં હું કર્ણનો વધ કરીશ. શ્રી કૃષ્ણનો મને સાથ છે. શ્રી કૃષ્ણના લીધે અધર્મનો નાશ થશે. ધૃતરાષ્ટ્રના 100 પુત્રોનો વિનાશ થશે. હે કૃષ્ણ, મારો રથ આગળ ચલાવો. કરીશ્ય વચનમ તવ. ખૂબ સરસ. સૂરજ સાથે રમતા ને શ્રી રામને સર્વસ્વ આપતા. સૂરજ સાથે રમતા શ્રી રામને સર્વસ્વ આપતા. લંકાને જલાવતા અને રાવણનું અભિમાન મિટાવતા. લક્ષ્મણનો જીવ બચાવતા ને ભરતને સંદેશો આપતા. લક્ષ્મણનો જીવ બચાવતા ને ભરતને સંદેશો આપતા. શ્રી રામ વગરનું જીવન નકારતા ને શ્રી રામના કામ માટે સદૈવ તત્પર રહેતા. જેના મનમાં છે શ્રી રામ, જેના તનમાં છે શ્રી રામ, જેના મનમાં છે શ્રી રામ, જેના તનમાં છે શ્રી રામ, જગતમાં સૌથી છે કરે તે મા અને ખાનગીમાં જે પ્રેમ કરે તે પિતા. આંખથી રડે તે મા અને અંતરથી રડે તે પિતા. લાગણીઓથી નવડાવનાર તે મા તો માગણીઓ પૂરી કરનાર પિતા. હવે નિહાળીએ સુંદર મજાનું નાટક જે પ્રસ્તુત કરે છે ધોરણ 1-2 ના બાળકો. बेटा सुरेश, मेरा चश्मा देखा क्या? सुबह सुबह शुरू हो गए पापा, कब छुटकारा मिलेगा इनसे पता नहीं। बेटा, मेरे को चश्मा कहीं नहीं मिल रहा है, तू ही ढूंढ के दे दे ना। क्यों सुबह सुबह परेशान करते हो पापा, आप खुद ही ढूंढ लो ना। मेरा चश्मा यही तो रखा था, कहाँ गया? दिख नहीं रहा है, चश्मा कहाँ गया होगा? बेटा, पापा, आपने नाक में दम करके रखा है, क्यों परेशान करते रहते हो? अपना चश्मा खुद संभाल के नहीं रख सकते? रोहन की मम्मी, पापा का चश्मा ढूंढ के देना तो। पापा जी का रोज का रामायण है, एक दिन का थोड़ी ना है। तुम ही ढूंढ कर दो, मैं भोजन बना रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। और हाँ, जल्दी ढूंढ कर दो, नहीं तो सामान इधर उधर कर देंगे, मेरा काम और भी बढ़ा देंगे। हे भगवान, तुम ही कुछ करो इनका। अपना चश्मा इधर उधर रखकर सबको परेशान करते रहते हो आप। पापा, ये सामने तो रखा है चश्मा, तुम सचमुच अंधे हो गए हो, ये लो। पापा पापा, ये गणित मुझे नहीं आ रहा है, आप कर दो ना पापा। बेटा, तू खुद ही कर ले, तू खुद करेगा तो ही सीखेगा, है ना? चल तू प्रयास कर, चल। हाँ पापा। जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, जवाब। संभल कर, तुझे लगी तो नहीं ना बेटा? नहीं पापा, मुझे नहीं लगी, मैं ठीक हूँ। और कैसे हो यार, सब खैरियत तो है ना? हाँ यार, कट रही है जिंदगी जैसे तैसे। जैसे तैसे मतलब? पापा, आप खाना बंद करोगे प्लीज?
क्या बताऊं यार, ऑफिस में बॉस का टेंशन और घर में ये पापा ने परेशान करके रखा है। दिन भर बस खांसते रहते हैं। इनकी छोटी सी छोटी चीजों का ख्याल हमें रखना पड़ता है। अरे लेकिन तूने अभी तक इस मुसीबत को घर पे पाल कर क्यों रखा है? मतलब? अरे मतलब साफ साफ है यार। मैंने तो अपनी मुसीबत मतलब अपने माता पिता को कब से घर से बाहर निकाल दिया। घर के बाहर मतलब? घर के बाहर मतलब वृद्धाश्रम में। अंकल अंकल, वृद्धाश्रम मतलब क्या होता है? बेटा रोहन, वृद्धाश्रम मतलब जहाँ बूढ़े लोगों को रखते हैं, जैसे कि तेरे दादाजी, तेरे पापा तेरे दादाजी से परेशान हैं, उन्हें वहाँ वृद्धाश्रम में छोड़कर आएंगे। मैंने भी अपने मम्मी पापा को वहीं रखा है। सही बात बताई यार तूने। ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई यार पहले। मैं भी अब ऐसा ही करता हूँ, पिताजी को वृद्धाश्रम छोड़ के आता हूँ। परेशान करके रखा ही इन्होंने। अच्छा तो ठीक है यार, चलता हूँ क्योंकि ऑफिस भी जाना है। ठीक है यार, बाय, मिलते हैं। ओ जी सुनते हो, टिफिन तैयार है। और हाँ, आप ऑफिस के लिए तैयार हो जाओ। बेटा रोहन, स्कूल का टाइम हो गया है, तू भी तैयार हो जा, अपना टिफिन भी ले लेना। रोहन की मम्मी, मेरा चश्मा कहाँ है? जरा ढूंढ के तो देना। अरे वही कहीं होगा, देख लो। बेटा रोहन, पापा का चश्मा ढूंढ के दो। पापा, आपका रोज का ड्रामा है ये। लगता है आप सचमुच अंधे हो गए। ये सामने ही तो रखा है चश्मा। पता नहीं पापा, आपसे कब छुटकारा मिलेगा। आप जल्दी जल्दी बूढ़े हो जाओ, मैं भी आपको वृद्धाश्रम में छोड़ के आऊंगा। रोहन, ये क्या तरीका हुआ बड़ों से बात करने का? क्या तुम स्कूल में यही सब सीखते हो? स्कूल में नहीं पापा, मैं तो आपसे ही सीखाऊंगा। जरा से गिरने पर आपको कितनी टेंशन हो गई। ये टेंशन मतलब आपका प्यार ही है ना पापा। तो बचपन में आपके पापा भी आपको ऐसे ही प्यार करते होंगे ना। बेटा रोहन, माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। माता पिता तो धरती के भगवान होते हैं, भगवान। उनका हमें आदर करना चाहिए। दादाजी, आप भी तो मेरे पापा के पापा हो, फिर भी वो आपका आदर क्यों नहीं करते? अरे ऑर्डर वजह देखे मेरे से गलती हो गई। मैं आपको वृद्धाश्रम नहीं भेजूंगा पिताजी। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है।
पहुंचने की खुशी में लोगों ने उत्सव मनाया, दीप जलाए, अंधेरे का साम्राज्य नष्ट हुआ था। उस रात संसार की पहली दीपावली मनाई गई, क्योंकि सबके प्रिय श्री राम ने अयोध्या का राज्य जो संभाल लिया था। प्रणाम प्रभु, ये लो, धन्य हुआ। पवन पुत्र हनुमान, मुझे तुम्हें कुछ देना है। कृपया मेरी ये भेंट स्वीकार करो। मैं धन्य हुआ माते। मां सीता ने मुझे भेंट तो दी, पर मैं सोचने लगा कि क्या इस माला में श्री राम का अस्तित्व है। मैं हर मोती की ध्यान से जांच करने लगा। इसे देखता हूं, इसमें भी नहीं है। किसी मोती में नजर ही नहीं आ रहे हैं। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। हाँ? ये क्या? इसमें भी नहीं है। हनुमान, इस माला का हर एक मोती एक एक राज्य के समान मूल्यवान है और तुम इसे तोड़कर फेंक रहे हो। हे लंका नरेश, मैं इन मोतियों में श्री राम को खोज रहा था, पर इनमें श्री राम है ही नहीं, और जिसमें प्रभु श्री राम नहीं वो तो फेंकने योग्य ही है। परंतु हनुमान, तुम्हारा अपना शरीर, क्या उसमें भी प्रभु राम की छवि है? हाँ है, आप स्वयं देख लो। जय श्री राम। हनुमान, तुम ही राम के परम भक्त हो। हनुमान, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांग लो। हाँ हनुमान, प्रभु ही तुम्हें कोई अनमोल भेंट दे पाएंगे। मेरे पास सब है, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। नहीं, कुछ तो मांगना ही होगा। तो दीजिए मेरा स्थान। भविष्य में भी धरती माँ को दुष्टों से बचाने के लिए तुम अमर हो हनुमान। मैं सदैव यही रहूंगा, दुष्टों के विनाश के लिए, धरती माँ की रक्षा के लिए। मेरे श्री राम को ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। वीर वीर के सहारे महावीर तुम हो। वीर वीर के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो।
तुम हो तेरी धरती से आत्मा को मिलता मेरी राम जी से कह देना दे दिया मेरी राम जी से कह देना दे दिया केसरी के लाल मेरा छोटा जाएगा राम जी से कह देना ગુજરાતનું ગૌરવ વર્ણવતું ગીત રજૂ કરે છે કેજીના બાળકો. ओ बाજરાનો રોટલો ને ખાટી મીઠી છાશ बाजरानो रोटलो ने खाटी मीठी छाश
સી ભરપૂર હોય છે. આમળા ખાવામાં ખાટા અને તુરા લાગે છે. આમળાને સંસ્કૃતમાં શીફલા કહેવાય છે. આમળામાંથી જ્યુસ, મુરબ્બો, ચમનપ્રાશ વગેરે બનાવે છે. આમળા મને બહુ ભાવે છે. Fruit. It is orange in color. The taste of orange is sweet. It is round in shape. I love to eat orange. Sasivu Vishuddho Udasva Guru Chasukura Sariram Keta Guruvardu Sarve Bhavatu Padatam Karotiva Chala Panguranga Jegiri Hatpaka Vande Paramananda Madhava Karotu Vachala Nagjanne Sampadam Satruti Vinasaya Dipajoti Namoshude. अच्युतं केशवं सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधिकं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकी नन्दनं नन्दजं भजे विष्णवे जिष्णवे चक्रिणे चक्रिणे रुक्मणी राधिने जानकी जानवे वल्लभी कृष्ण गोविंद हे राम नारायण श्रीपते वासुदेव जित श्रीनिधे अच्युतानंत हे माधवा दोक्षज द्वारकानायकं द्रौपदी रक्षक राक्षसो शोभितो सीतया शोभितो दण्डकारण्यकुपुण्डताकालय लक्ष्मणेन गस्तं पूजितो राघवा पातु मां. खूब सरस. मेरा नाम कंथा है. श्री हरि नारायण की बड़ी भक्तिन हूँ. सदा भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति में मग्न यहाँ वहाँ यात्रा करती रहती हूँ. भक्त की भक्ति यदि सत्य हो तो भक्त में भगवान की और भगवान में भक्त की छवि दिखाई देती है. और भगवान से कौन परिचित नहीं. इसलिए जीवन रूपी इस यात्रा में हम जोग जोगिन जिससे भी भेंट करते हैं उन्हें चिर परिचित प्रतीत होते हैं. हरि हरि. पूजा हरि का पूर्व अवतार कश्यप का रूप धरा और मंदराचल को दिया आधार. हरि नाम अनंत हरि कथा अनंत धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा. नारायण की महिमा अपार आप मिटाने हैं तुझे अवतार. सुनो सुनो महिमा अपरंपार.
आप मिटाने हैं चूलिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब राजाओं का बड़ा अधर्म और पाप, तब लिया प्रभु ने परशुराम अवतार। कार्तिवीर्य अर्जुन को भी मारा, जब किया सबका अहंकार। हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, आप मिटाने हैं चूलिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। दुष्ट रावण का करने संहार, विष्णु लेंगे श्री राम अवतार। राम नाम के कारण मंत्र से गूंजेगा सारा संसार। हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, आप मिटाने हैं चूलिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। जब जब बना अधर्म धरा पर, लेना पड़ा प्रभु को अवतार। अधर्म पर धर्म को विजय दिलाने, द्वापर में लेंगे कृष्णा अवतार। हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, आप मिटाने हैं चूलिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। कलयुग में जब होगी पाप की पराकाष्ठा, तब लेंगे प्रभु कल की अवतार। त्रेता युग का आरंभ करने, कलयुग में हरि का अंतिम अवतार। हरि नाम अनंता, हरि कथा अनंता, धन्य हो जीवन सुन पावन गाथा। नारायण की महिमा अगम अपार, आप मिटाने हैं चूलिए अवतार। सुनो सुनो महिमा अपरंपार। પ્રોગ્રામની તૈયારી વખતે અમે એક વાર હું જોવા નથી ગયો, પણ આજનું પરફોર્મન્સ જોયા પછી મને એટલો આનંદ છે કે છોકરા તમારા એટલા સ્માર્ટ છે અને મોટા કાર્યક્રમ કરતાં પણ ખૂબ સરસ એ લોકો એક્શન કરે છે. બધા જ કાર્યક્રમો માટે લગભગ 1 મહિનાથી તૈયારી ચાલે છે અને આટલા નાના બાળકો કેટલા શક્તિ અને ઉત્સાહ અને સ્ફૂર્તિથી ભરેલા છે. ગમે તેટલો નિરાશ માણસ હોય તો પણ એ ઉત્સાહિત થઈ જાય. KG 1, 2 અને બાલવાટિકા અને પહેલાં બીજાના બાળકોના માતા પિતાને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કે આટલી મોટી સંખ્યામાં બધા જ આવ્યા છે, બધા જ શાંતિથી બેઠા છે. ઠંડીના કારણે થોડુંક વહેલું રાખ્યું. ભગવાનની કૃપાથી આજે ઠંડીનો કોઈ પ્રશ્ન ન રહ્યો અને શાંતિથી સમયસર આપણો કાર્યક્રમ પૂરો થઈ જશે. બાળકો જે ઉત્સાહ અને સ્ફૂર્તિથી અહીંયા રજૂ થાય છે, એવો ને એવો ઉત્સાહ એમનો છેક સુધી અકબંધ રાખવાની જવાબદારી માતા પિતાની છે. સંચાલક, પાલક, શિક્ષક અને બાળક આ ચારે ચાર સ્તંભ એક સાથે કામ કરે તો બાળકનું ઘડતર થાય. આપણે એમને ભણાવીને શું બનાવવા છે એનું એક ધ્યેય પિતાએ આપવાનું છે. અહીં બેઠેલા બધા જ બાળકોના માતા પિતાને હું કહું, આપણે આ વર્ષે
થોડાક લેટ પડ્યા છે મળવા માટે, અને ઠંડીના દિવસો જાય એટલે ફક્ત કેજીના બાળકોના માતા પિતા સાથે આપણે મળીશું. દર વર્ષે રાતે જ એની બેઠક હોય છે. એમાં ઘણી બધી વાતો વૈચારિક રીતે સૈદ્ધાંતિક આપણે સ્પષ્ટ કરીએ છીએ કે બાળકોની સાથે કેવી રીતે વર્તવું. નાટકમાં બહુ સરસ એમને બતાવ્યું કે બાળક સૌથી વધારે ઘરમાં શીખે છે, અને એ બાળકોને ઉમરા છોડને ખાતર પાણી આપવાનું કામ, એમની સંરક્ષણ કરવાનું કામ એટલું જ